ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जो कि इनकी स्टोरी पर्टिकुलरली मुझे बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी चली थी आज़ाद चाय वाला भाई की, जिसमें उन्होंने कहा कि जी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट और वो नहीं अकाउंटेंसी 10 दिन में कर लो, तो लोग बड़े गुस्से हुए थे कि जी चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक बड़ी साइंस होती है। तो मैंने पहले तो सोचा, मैंने कहा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलाया जाए शो के ऊपर, लेकिन इन भाई ने CA करके उसके बाद फिर वो जिस पॉइंट के ऊपर इस वक्त पहुँचे हुए, he's a big name in the startup culture, the startup world, as well as again investment। पहले भी हमने एक इस तरह के मेहमान को बुलाया था, तो हमने सोचा कि इनसे भी बात की जाए। उमर परवेज़ खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड, और मैंने बाकी एपिसोड्स भी देखी थी। ज़बरदस्त, रियली इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच। सो उमर is a partner at High Output Venture. They invest in startups or invest in a bunch of different things. Yeah, so they invest in a bunch of different things. Singapore-based venture studio हम कहते हैं. So there are companies that we build ourselves, but there are also companies that we invest in, जो normal venture capital route होता है. Right. And we also invest in other sort of non-venture businesses, जो ज़्यादा traditional type आपको लगते हैं. Right. So what would those be, for example? So for example, right now we have invested in a company which is in the distribution business. Okay. That is out of Myanmar. और अभी Vietnam में we have invested in a media studio as well. So very interesting. पाकिस्तान में हमारी investments हैं अभी, it's more on the venture side. Right. हम बाकी चीज़ें भी करते हैं in other countries. Very interesting. थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि how did you come about this particular side of things, considering कि आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की थी, कि आपने बस वो किया और करते साथ ही आपने कहा बस ये छोड़ो और मैं इस तरफ निकल जाता हूँ, या was there a route? No, there was a clear route. तो मैं अपनी जो भी ट्रेनिंग कर रहा था at PwC Ferguson इस्लामाबाद, और मैं लगा हुआ था, it was fine, it was not too bad, auditing was good, बड़ी बड़ी कंपनीज में जाते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें देखते हैं, बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, so that part of it was fun. On the startup side, मैं by chance ही मेरा introduction हुआ. I was dragged to a startup sort of pitching competition. Right. And I was very reluctant. मैं जाना ही नहीं चाह रहा था. मैं गया, हॉल के पीछे खड़ा हुआ, मैंने कहा जल्दी ख़त्म हो, निकलें. मैं typical accountant type था. But when they started pitching, and when I saw the energy and the passion with which they were discussing their businesses, their ideas, it sort of piqued my interest कि यार ये एक different sort of दुनिया है और ये different किस्म की businesses की बात करें. हाँ, like पैसा कमाना, business करना is not as dry as it seems like. Yeah, right? yeah, exactly. I mean, there's so much energy, passion, so many ideas just bouncing off the table. So वो मेरा पहला introduction हुआ. And then my wife, she was working at an accelerator, Invest to Innovate. Right. And she said, हमारे ये startups आते हैं जिनको हम help करते हैं, पर ज़्यादातर are from the tech background, या कोई और, some of them are doctors, some of them are engineers. So they don't understand the finance side of things. So why don't you just come over one day if you can? उनको थोड़ा explain कर दो, profit and loss statement क्या होती है, costing कैसे करते हैं, pricing कैसे करें, basic चीज़ें accounting की. Right. I was like, ठीक है, मैं आ जाऊँगा. And then I started sort of working with them, और मैं एक दो companies से मिला. Some of them ने accelerator के बाद भी मुझे कहा, why don't you please help us, further as well. तो वहाँ से मेरा introduction हुआ. And then I started working with all these entrepreneurs, all these founders on a pro bono basis. But I would just go and help them with their account, with their financial models. फिर वो चीज़ें escalate होती रहीं, फिर मैं उनके लिए investor negotiations भी कर रहा था, तो फिर मैं एक full time fundraising consultant type बन गया. Right. And so I did this for like 3-4 years while other stuff as well. तो and during that time मैं शायद 50+ entrepreneurs से तो मैंने काम किया होगा. अच्छा. And as the VC scene itself started growing in Pakistan, तो मेरा फिर interest हुआ कि अब वेंचर कैपिटल आ गया इधर, तो मैं आई कैन मेक द मूव नाउ, आई हैव दिस सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस. एंड देन आई वेंट टू अ वेंचर फर्म, एंड उन्होंने ये कहा कि योर कोर बैकग्राउंड इज अकाउंटिंग, सो आई डोंट नो, पर मैंने कहा मेरा ये सारा एक्सपीरियंस है, ये वो, एंड आई टोल्ड देम आई विल वर्क फॉर फ्री फॉर 4 months, एंड इफ यू लाइक मी आफ्टर 4 months यू कैन हायर मी, एंड वरना ठीक है, इट्स फाइन. And they hired me after 3 months because मेरा एक्सपीरियंस था, and they saw कि वो. And how old were you at this point? I was pretty old. I was, I think 30, 31. Wow. At this point. So I was like pretty, into my career, थोड़ी trajectory बनी हुई थी, लग रहा था, पर वो एकदम And you change left हुई. that like very, very set trajectory, worked somewhere for 3 months for nothing, Yeah. in the hope कि यार अच्छा मैं इसमें I'll grow from there. Yeah, definitely. Accounting की मैं आपको एक, शायद accountants मेरे बात पसंद ना है मेरी, but वेंचर कैपिटल जब मैं लोगों से काम करना शुरू हुआ और फंड रेजिंग कंसल्टेंट बना, वन थिंग दैट रियली सॉर्ट ऑफ
popped out to me is that accountant and accounting is a cost center. ठीक है. Venture capitalist, fund managing, investing for people is where आप लोगों को पैसे बना के दे रहे हो. Right. एक जगह आप उनको एक सर्विस दे रहे हो, उनको कॉस्ट पड़ रही है, हाँ तो उसका कैप होगा. हाँ. वो किसी एक कॉस्ट से ऊपर नहीं जाना चाहिए. उनको सर्विस चाहिए, उन्होंने अकाउंट्स बनाने, ऑडिट कराना है, ये आपका काम है. राइट. अगर आप किसी से पैसे बना के दे रहे हो तो उसकी कोई लिमिट नहीं है. हाँ. आप उसको 10 से 20 बना के दो, अगली बार 50 इसको देगा, 100 बना के दो, अगली बार 100 देगा, 200 बना के दो. राइट. तो आपकी कोई कैप नहीं होती. एंड दैट वाज वन ऑफ द आल्सो द यू नो पुल्स ऑफ वेंचर कैपिटल एंड फंड मैनेजिंग इटसेल्फ, राइट. which yeah. which is why you sort of went towards that side. अच्छा, मैं conversation को जब ज़रा घुसूँ इसके अंदर, we've actively discussed, you know, Meena was here a few days ago, and उनके अंदर हमने जो है वो podcast में discuss किया कि startups में investment किस तरह होती है, startups चलते किस तरह हैं, वगैरह वगैरह. Yeah. आपसे जो मैं primarily what I want to talk about is for a simple person. ठीक है, मैं एक random आपके ऊपर throw करता हूँ, we take it from there. Right. मैं लेट्स से मैं ग्रेजुएट किया हूँ, मेरी एक आईटी की जॉब लग गई, खान साहब आ गए, डॉलर डिवैल्यूएट हुआ, मेरी तनख्वाह बढ़ गई, मैंने 2-3 स्विचेस मारी हैं, मैं 2-2.5 लाख रुपया कमा रहा हूँ, घर का मेरा खर्चा 1 लाख रुपया है, मेरा महीने का जो है ना 1-1.5 लाख बच रहा है, साल के आखिर में मेरे पास 10-12 लाख रुपया आ गया. मेरे तो कभी वहमो गुमान में भी नहीं था कि मेरे पास इतना पैसा आएगा. ठीक है, आ गया. अब मैं सोच रहा हूँ मैं इसका क्या करूँ, गाड़ी ले लूँ या उड़ा दूँ कहीं पर जाकर, लेकिन वो पड़ा हुआ है और समहाउ यू नो महंगाई बढ़ी जा रही है, तो उसकी जो 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 पैसे की वैल्यू है वो भी मुझे लग रहा है कम हो रही है. सो फॉर एन एवरेज यंग गाय और गर्ल जिसने 6 लाख 8 लाख 10 लाख बना लिया, उसके पास पाकिस्तान में कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन्वेस्टमेंट करने की. बट और रादर लेट्स टेक इट लाइक दिस, इन्वेस्टमेंट होती क्या है? Yeah, that's a good place to start. I think a better place to start. Investment होती क्या है? Investment लोग यही कहते हैं, इन्वेस्टमेंट ये होती है मैं पैसे डालूंगा, ज़्यादा पैसे बनेंगे, पैसे निकालूंगा, जो भी करेंगे. लेकिन इसके कुछ फंडामेंटल्स हैं जो आपने अंडरस्टैंड करने होते हैं. राइट. क्योंकि कभी कभी आपको लगेगा कि आपने इन्वेस्ट किए हैं पर आपको रियल टर्म्स में रिटर्न नहीं मिल रहा होगा, और ये हम इस पे बात करेंगे. तो 2-3 मोटी मोटी चीज़ों पे हम स्टार्ट करते हैं. आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए एक एसेट क्या चीज़ होती है और एक लाइबिलिटी क्या चीज़ होती है. राइट. आपको पता होना चाहिए ROI क्या होता है, विच इज़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एंड दैट इज़ डायरेक्टली लिंक्ड टू इन्फ्लेशन एंड डिवैल्यूएशन एंड ऑल दैट. और आपको पता होना चाहिए कि डाइवर्सिफिकेशन क्या होती है ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. राइट. और फोर्थ चीज़ इज़ वाई डू यू वांट टू इन्वेस्ट, वेयर डू यू वांट टू गेट टू, ताकि आपको पता हो आपका गोल क्या है और आपको पता हो कि वो रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा. हाँ, अंधाधुन ना घुस जाए किसी चीज़ के अंदर. बिल्कुल. तो एसेट्स लाइबिलिटीज़ की से हम स्टार्ट करते हैं, एंड बिकॉज इट्स वेरी ईजी, लेकिन लोग मिस कर जाते हैं. जो डेफिनेशन ऑफ एसेट होता है ना जमील, वो असल में होता है कि समथिंग दैट फ्रॉम विच यू नो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्लो टू यू. ठीक है. ये होता है एक एसेट. ठीक है. हमें लगता है कि हम कोई चीज़ ले लेंगे और उसकी प्राइस बढ़ेगी और फिर हम बेचेंगे, तो ये हमारा एसेट है. गाड़ी को जिस तरह आप एसेट समझते हैं, गाड़ी को, घर को एसेट समझते हैं. राइट. लेकिन आप क्योंकि अपने PKR टर्म्स में सोच रहे होते हो, आपको असल में नहीं पता कि रियल टर्म्स पे क्या रिटर्न है. राइट. अब मैं गाड़ी का आपने जिक्र किया, हम यू नो सिविक की एग्जांपल लेते हैं. 10 साल पहले मैंने नई सिविक खरीदी. राइट. ठीक है, मुझे याद नहीं है, चले 17 लाख कह देते हैं. 10 साल पहले मैंने ब्रांड न्यू लेटेस्ट मॉडल सिविक खरीदी 17 लाख की. अब 10 साल गुजर गए और मैंने कहा अब मैं वो बेच के एक नई सिविक, अब लेटेस्ट मॉडल सिविक लूँगा. ठीक है, थोड़ी करेंसी डिवैल्यूएशन हुई, जो हुई थोड़ी बढ़ भी गई आपकी वैल्यू. अब 17 की ली थी, 20 की 21 की बिकी, आपको लगता है बड़ा हुआ. लेकिन आपको पता है कि हमारे एवरेज इन्फ्लेशन रेट पाकिस्तान में ओवर 10 ईयर्स उस प्राइस की 17 लाख रुपीज़ की वैल्यू क्या है, या 21 लाख रुपीज़ की वैल्यू क्या रहेगी? 10. ओवर 10 ईयर्स बेसिकली हमारे जो एवरेज 10 साल का इन्फ्लेशन रेट आ रहा है उस पर तकरीबन हाफ हो जाती है. राइट. अब नई सिविक लेने के लिए आप 36 लाख चाहिए, 37 लाख चाहिए. तो नई सिविक एसेट था या लाइबिलिटी थी? नई सिविक, आप नई सिविक को एक कमोडिटी समझे. नई सिविक 17 लाख की, अब नई सिविक 36 लाख की. हाँ. तो डिवैल्यू हुई या वैल्यू बढ़ी? हाँ, डिवैल्यू हुई. उस कमोडिटी डिवैल्यू हुई. राइट. क्योंकि करेंसी 50% हुई. आपको वही चीज़ लेने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़े और जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो भी आपको लगता है 4 लाख ऊपर गए, असल में वो नीचे गए. राइट. इसके बरक्स एक और एग्जांपल देखें, कोई भी टूथपेस्ट की सेल लगी हुई है. राइट. ठीक है, सेल लगी हुई है, वो कह रहे हैं बाय 1 गेट 1 फ्री. ठीक है.
अब अगर आप जाएं और आप 2 साल का स्टॉक उठा लें, हाँ, तो ये आपका एसेट है या लाइबिलिटी है? मेरा हिसाब से ये एसेट है, ये एसेट है, क्योंकि क्योंकि मैं इसको आपको वापस 2 बेच साल सकता से हूँ। उतना रिटर्न आ रहे, बेच ना सकें। हाँ, आपको टेक्निकली इन्फ्लोज आ रहे हैं क्योंकि आपको वो जो पैसे खर्च करने हो रहे थे वो अब आपको नहीं करने पड़ेंगे 2 ईयर्स के लिए। 2 ईयर्स में आपने अपने पैसे डबल किए टेक्निकली, हाँ, 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 राइट? तो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट, मैं ये नहीं कह रहा कि करेंगे, हाँ, पर ये सिर्फ समझाने एक के साइंस लिए। की, एक अंडरस्टैंडिंग की बात है हाँ। कि बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जिसने रोटेट होना ही होना है, तो वो आप पैसे से हटाकर प्रोडक्टिविटी मार्केट में ले जाएंगे और वहाँ से आप यू मेकिंग मनी आउट ऑफ दैट। बिल्कुल। तो असल में वो घर, गाड़ी, मैंने कहा ना कि 10 ईयर्स में हाफ हो जाता है। तो अगर आपने प्लॉट लिया है और वो प्लॉट 10 ईयर्स में डबल नहीं होता, तो आपने पैसे लूज़ किए हैं, क्योंकि आप PKR टर्म्स में सोच रहे हो। PKR में खरीदूंगा, PKR में बेचूंगा, लेकिन PKR की वैल्यू आधी होगी 10 साल में, राइट। प्लॉट की वैल्यू डबल नहीं हुई। हाँ, तो वो प्लॉट आपका एसेट नहीं, तो आपकी सेविंग थी। राइट, सेविंग थी जो थोड़ा सा कम उसकी भी प्राइस बढ़ी, तो थोड़ा सा कम डिवैल्यू हुई, फुल नहीं हुई। आपने इफेक्टिवली you lost in the grand scheme of things. अपना लॉस कम किया आपने। हाँ, या अगर डबल भी होगी 10 साल में, तो आपने ब्रेक इवन किया। हाँ, तो आपने पैसे सेव किए, या आपने इन्वेस्ट नहीं किए प्रॉपर्टी में। कि राइट, आपका वो पूल, जो चीज़ आप परचेजिंग पावर है आपके रुपयों की, वो उतनी ही रही अगर डबल भी हुई प्रॉपर्टी की वैल्यू। तो ये सबसे बेसिक चीज़ एसेट लायबिलिटी। और इसमें बुक रिच डैड पुअर डैड बड़ी मशहूर बुक है, काफ़ी आपके व्यूअर्स ने शायद पढ़ी भी हो। उसमें एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज़ की बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। अगर कोई रियली अंडरस्टैंड करना चाहता है तो वो बुक मैं रिकमेंड करूँगा। पर ये कोर है कि आप पहले समझे इन्वेस्टमेंट होती क्या है। ये प्लॉट अगर डबल भी हुआ 10 साल में, तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपकी सेविंग है। राइट। गाड़ी लॉस है, ठीक है, उसमें इंटेंजिबल चीज़ें होती हैं कि भी गाड़ी में यूज़ करता हूँ, utility ये है, होता है, सारा वो कुछ, करता है, मैं जॉब पे जाता हूँ, जॉब से पैसे कमाता हूँ, या जो भी करता हूँ, ठीक है, दैट्स फाइन। इसलिए आप लेते हैं गाड़ी, मैं नहीं कह रहा ना लें, हाँ, पर आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो उस तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं है। राइट, तो फिर इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ है? जो मैं रिटर्न, ROI और इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ। राइट, आपको फिर इसका मतलब ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो आपको कोई रिटर्न दे रही है, वो एक ऐसी चीज़ है जो कुछ साल में आपको जो रिटर्न है PKR टर्म्स में, या जिस करेंसी में भी आप सोच रहे हैं, उसके वो रिटर्न ज़्यादा हो वर्सेस द डिवैल्यूएशन और इन्फ्लेशन। तो अगर आपका 7-8% आप एवरेज लें इन्फ्लेशन, तो आपको कोई चीज़ उससे ऊपर दे रही हो ईयर ऑन ईयर, तो फिर वो आपकी इन्वेस्टमेंट हुई, आपकी असल में आपकी वेल्थ ग्रो कर रही होगी। राइट। बट बिफोर वी गेट डीपर इनटू दिस, अगर हम इसमें घुसे हुए हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें ROI और इन्फ्लेशन कि ये व्हाट्स द थॉट बिहाइंड दीज टर्म्स। राइट। सो ROI बेसिकली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही कहते हैं। ठीक है, कि कितना पैसा लगाया और उसके ऊपर कितना मुझे रिटर्न मिला। मैंने वो 1x लगाया, मैंने 100 रुपये लगाए, 10 साल बाद 200 हो गए, तो आप कहेंगे यार 2x मेरा ROI है, लेकिन आपकी रियल टर्म में रिटर्न इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो नहीं है, क्योंकि अगेन 10 साल में आपकी PKR की वैल्यू आधी होगी। राइट। तो इसलिए आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड ROI देखना चाहिए। ठीक है, और इन्फ्लेशन व्हाट डज दैट मीन? सो व्हाट्स इन्फ्लेशन? सो इन्फ्लेशन ये है कि एज द मनी सप्लाई इंक्रीजेस, एज द वेलोसिटी ऑफ मनी इंक्रीजेस, एज पीपल स्पेंड मोर मनी, और एज डिमांड राइजेस वर्सेस सप्लाई, जो भी मार्केट फंड में बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं, तो आपकी परचेजिंग पावर ऑफ आपका जो पैसा है ना, वो ओवर टाइम कम होती रहती है। ठीक है, क्योंकि अगर ज़्यादा लोग स्पेंड करें, प्राइसेस ड्राइव अप करें, तो अगर आप 10 साल पहले 100 रुपये के 3 टूथपेस्ट खरीद सकते थे, 5 साल बाद शायद आप 2 खरीद सकें 100 रुपये। राइट। सो जो हम देखते हैं बेसिकली कि आलू 40 रुपए का हो गया और टमाटर 80 रुपए का हो गया, तो वो बेसिकली इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन हो रही है। उतनी पैसों से अब आप क्या चीज़ खरीद सकते हैं वर्सेस अब 10 साल पहले क्या खरीद सकते थे, वो इन्फ्लेशन की वजह से चीज़ें कम हो गई हैं। ठीक हो गया। सो फॉर एग्जांपल हमने कहा कि जी मैंने अगर 100 रुपया इन्वेस्ट किया और 100 रुपये का 200 रुपया हो गया 10 साल में, और डॉलर डिवैल्यूएट नहीं हुआ, लेकिन मार्केट में आलू की प्राइस 100 रुपये से 200 रुपये हो गई, तो 10 साल बाद मैंने वही 5 किलो आलू खरीदा जो मैं 10 साल पहले खरीद रहा था। तो मेरी ज़ात को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। कोई भी नहीं। आपकी वेल्थ उतनी है, आपको लगेगा रुपी टर्म्स में आप बड़े हैं, पर आपकी रियल जो रिटर्न में बात कर रहा हूँ वो नहीं है। तो ये अंडरस्टैंड कि जो भी आप देखें, जो भी आप अगर इन्वेस्टमेंट असेस कर रहे हो ना, कोई आपको प्रॉपर्टी डीलर है, कोई है क्या यार ये खरीदो 10 साल में डबल हो जाएगी प्राइस, तो आप उसको ये तो कह सको भाई 10 साल में डबल होगी, तो वही बात होगी, ये तो मैं सेव ही कर लेता हूँ फिर कैश, एक ही बात है। राइट। तो ये मतलब सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। ठीक है। सो बेसिक्स आपने थोड़ी सी समझा दी कि जी अगर अपने इन्वेस्टमेंट का मेंटालिटी पे जाना है तो आपने इस मेंटालिटी से जाना है। अब मैं फॉर एग्जांपल पूछता हूँ, अगर मैं वापस सवाल को उसी तरफ लेकर आऊँगा। अब एक लड़का है जी 10 लाख रुपए है उसके पास, अब वो कह रहे हैं कि यार व्हाट आर द गुड एरियाज ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपने कहा कि चीज़ प्रॉपर्टी जनरली इज़ नॉट अ वेरी गुड, इट्स अ, मैं वैसे भी अगर देखूँ ना बियॉन्ड द फाइनेंशियल फंडामेंटल्स,
मुझे हमेशा प्रॉपर्टी एक डेड इन्वेस्टमेंट लगती है इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स. आप ना पार्क कर रहे हो पैसा, इधर से पार्क करके उधर डाल रहे हो, उधर से पार्क करके डाल रहे हो, सेविंग कह लें. हाँ, वो इफेक्टिवली ना तो इकोनॉमी को इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स फायदा पहुंचा रही है, ना ग्रोथ को, कोई प्रोडक्टिविटी ग्रोथ नहीं हो रही है. और प्रोडक्टिविटी ग्रोथ नहीं हो रही तो इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स आपको कोई इतना फायदा होगा नहीं, ना इकोनॉमी को होगा ना आपको होगा. बिल्कुल. सो व्हाट आर द अदर एरियाज जहाँ पर जनरली कहा जाता है कि ठीक है, जो स्मॉल टिकट साइज है, मैं 10 मिलियन 20 मिलियन 30 मिलियन वाले इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा, मैं एक आम मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा हूँ, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो व्हाट आर द एरियाज टू इन्वेस्ट? राइट. सो हम एरियाज की बात करते हैं, और स्मॉलर द टिकट साइज में सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जितना स्मॉल टिकट साइज है उतना ही आपको टाइम लगेगा, उतना ही आपके लिए मुश्किल होगा. तो अगर कोई आके कहता है मैं 10 लाख मेरे पास हैं, और मैं साल के अंदर अंदर उसको 20-30 लाख करना चाहता हूँ, मुझे कोई ऐसी बात बताएं, तो फिर वो कोई टुल्ला ही होगा. वो इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटेड उस तरह नहीं हो सकती. वो डबल शाह के पास ही जा सकता है बेसिकली. तो अगर आपकी कोई ऐसे एक्सपेक्टेशंस हैं तो वो बहुत मुश्किल है. उसके भी तरीके बताएंगे हम, अब आगे बात करेंगे, ट्रेंड्स क्या होते हैं, ये क्या होता है, वो क्या होता है, उसके एवेन्यूज़ होते हैं. पर आप उन चीज़ों पे ये नहीं करते मेरी 10 लाख सेविंग है, 10 की 10 इसी में डालूंगा और छक्का मारूंगा. हाँ. तो सबसे पहले जितना ज़्यादा रिटर्न होगा उतना फिर रिस्क भी उसके हिसाब से बढ़ता रहेगा. बिल्कुल, रिस्क रिवॉर्ड इक्वेशन समझे. और तो ये आप पहले डिसाइड कर लें कि ठीक है, आपको पता होना चाहिए आप बिल्ड कर रहे हैं वेल्थ. इट इज़ गोना बी बिल्ट ओवर टाइम. ऑल यू हैव टू मेक श्योर इज आपका ROI जो है वो इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है. ठीक हो गया. अब इसके बेसिक सी इक्वेशन आपने समझा. बेसिक सी इक्वेशन होगी. अब इसके एवेन्यूज़ होते हैं. म्यूचुअल फंड की बात कर लें. म्यूचुअल फंड में आपको कोई लिमिट नहीं है. आप 50,000 भी डाल सकते हैं, आप 5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं एक्चुअली. ठीक है. और आप मंथली उसमें डाल सकते हैं. 20,000 मंथ का सेव हो रहा है तो मैं 20,000. ठीक है. म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं? जिस तरह ये मैंने बड़ा सुना है जी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड वालों के होते हैं, MCB वालों के होते हैं, होते क्या हैं? साइंस क्या है? सो म्यूचुअल फंड जिस तरह वेंचर कैपिटल का पता है, कोई डिफरेंट लोग से आप पैसे रेज करते हैं और आप मैनेज करते हैं, तो म्यूचुअल फंड भी ये हैं थोड़ा ग्रैंड स्केल, मतलब ऐसे रिटेल स्केल पे करते हैं कि वो मैनेजर्स ऑफ द मनी होते हैं, और इसलिए म्यूचुअल वो फंड्स होते हैं और वो उसको मैनेज करते हैं. लेकिन डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स डिफरेंट चीज़ों में करते हैं. कुछ म्यूचुअल फंड्स होंगे वो डेडिकेटेड होंगे स्टॉक मार्केट पे, वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कहेंगे. कुछ म्यूचुअल फंड्स होंगे वो मनी मार्केट में होंगे. ठीक है. बॉन्ड्स वगैरह ये वो, उनमें रिस्क कम होता है, रिटर्न भी कम होता है. और इसी तरह डिफरेंट चीज़ों में कोई एसेट बैक्ड होते हैं, कोई बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के टाइप होते हैं. गोल्ड खरीद रहे हैं, वो कोई चीज़ खरीद रहे हैं. बिल्कुल. हेज फंड्स हो सकते हैं जो कि डिफरेंट चीज़ों में बस वो करते हैं. तो ये आप मतलब ऑनलाइन जाएँ कहीं जाए, आप इसके बारे में पढ़ें, आपको पता होना चाहिए क्या. पर जनरली स्पीकिंग पाकिस्तान की एक वेबसाइट है, आई थिंक mufap.org.pk या कोई ऐसी. We'll check that out and we'll add that in the description as well. Yeah, so there's a website. और ये क्योंकि म्यूचुअल फंड्स काफ़ी रेगुलेटेड टाइप होते हैं, मतलब तो उसमें रिस्क भी कम होता है, और ये नहीं होता कि कोई पैसे आपके लेगा तो वापस नहीं करेगा जो निकालने. हाँ, जाहिर है एक बड़ी इंस्टीट्यूशन बड़ा. इसके अराउंड डॉक्यूमेंटेशन बहुत है. तो आप उस वेबसाइट पे जाएं, यू कैन एक्चुअली सी ऑल द म्यूचुअल फंड्स इन पाकिस्तान, राइट, एंड यू कैन सी देयर परफॉर्मेंस, राइट, एंड देन यू कैन सी ओके कौन सा म्यूचुअल फंड किस चीज़ को बीट करता है. इन्फ्लेशन को कौन सा आजकल बीट करे, ओवर 10 ईयर्स किसने बीट किया है, इस मंथ किसने बीट किया है. और म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी फिर आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो. सो अगर आप एक म्यूचुअल फंड है जो सिर्फ इक्विटी पे फोकस करे तो वो थोड़ा हायर रिस्क होगा. राइट. तो जाहिर है जो जिनके पैसे म्यूचुअल फंड में थे एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, जब पेंडेमिक हिट हुआ और स्टॉक मार्केट नीचे गया, उनके तो काफ़ी लॉस हुआ. जिन्होंने उस वक्त आए जो 28 या 27 जो PSX का इंडेक्स था उस पर अरब 44-45 प्लस है, वो हो गया. तो उसमें थोड़ा सा आपको जाहिर है तो क्योंकि उसमें रिस्क ज़्यादा है, तो उसमें आपको थोड़ा कम चंक डाल सकते हैं और फिर आप थोड़े लेस रिस्की में डाल सकते हैं. पर ओवरऑल आपने देखना है इक्वेशन, राइट, कि यार ये मैं डालूंगा तो ये इसको बीट करेगा. प्रॉपर्टी में भी होता है, राइट. सो प्रॉपर्टी में अगर आपका टिकट साइज लो है तो वैसे भी आप कोई डेवलप्ड जगह पे नहीं ले सकोगे, राइट, प्रॉब्ली. आपको यूजली 10-20 लाख अगर है तो आप कहीं डाउन पेमेंट दोगे और फिर इंस्टॉलमेंट्स दोगे, राइट. तो उसमें फिर जाहिर है आप ऐसी जगह देखते हो जो थोड़ी अंडर डेवलप्ड है, राइट. जो थोड़ी अंडर डेवलप्ड है उसका फिर चांस है, जाहिर है उसमें भी रिसर्च, और इस सब में रिसर्च बहुत सही है. अगर कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, रोज बैठ के डे इन एंड डे आउट वो रिसर्च कर रहा हो तो उसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. डेवलपर कौन है, पीछे कौन पार्टी कर रही है, क्या कर रही है. म्यूचुअल फंड्स की मैंने सारी रिसर्च बता दी, प्रॉपर्टी में ये सारी रिसर्च है. फिर आप देख सकते हो ये चीज़ें होती हैं जो मार्केट को बीट करती हैं. और मार्केट को बीट करने का यही मतलब है कि जनरल कोई बॉन्ड्स में डाल देता पैसे, या डिफेंस सर्टिफिकेट्स में डाल देता, या इन्फ्लेशन का ही रेट देख, तो उन चीज़ों को इन लोगों ने बीट किया, राइट. तो अगर प्रॉपर्टी की तरफ जाने या
या दूसरा जिसके लिए थोड़ा हायर टिकट साइज़ होता है और वो पाकिस्तान में कम है इसलिए मैं थोड़ी बात करूँगा, लेकिन बाहर ज़्यादातर यही होता है, वो एक डेवलप्ड अपार्टमेंट टाइप प्रॉपर्टी लेते हैं, रेंटल प्रॉपर्टी लेते हैं, राइट, या आपका अपना घर है तो आपने अपना एक पोर्शन रेंट पे दे दिया, फिर वो आपका एसेट बन जाता है क्योंकि वो आपको मंथली वो दे रहा Return दे है रहा है। विच विल बीट इन्फ्लेशन प्लस Right. उसकी अपनी वैल्यू बढ़ेगी, राइट, इवन इफ दैट कवर्स इन्फ्लेशन, और फिर आपके 10 साल में डबल हुए तो असल में आपके पैसे डबल हो गए 10 साल में। राइट। सो अगेन मैं आई एम अ 30-year-old गाय, हैवंट रियली मेड एनी इन्वेस्टमेंट्स राइट नाउ, तो मैं सोचता हूँ कि अच्छा मैंने अपना इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना है तो प्रॉब्ली मैं स्टार्ट करूँगा, मैं कहूँगा यार ठीक है मैं थोड़ा सा म्यूचुअल फंड्स में डालता हूँ, मैं 5-6 लाख को पहले मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसे 2-3 सालों में मैं 10-12-13 लाख पे लेकर आऊँ और मैं जो और कमा रहा हूँ वो भी सेव करूँ। बिल्कुल। फिर इवेंचुअली मेरा नेक्स्ट स्टेप प्रॉब्ली होगा कि यार मैं एक अपार्टमेंट बजाय इसके कि मैं फाइल लूँ और दबा दूँ कहीं जाकर, तो मैं एक प्रोडक्टिव उसमें किसी अपार्टमेंट में कोई वो ले लेता हूँ या कोई शॉप मिलती है तो वो ले लेता हूँ, बिल्कुल। और उससे जो है ना रेंटल के ऊपर कमाता रहूँ ताकि मेरी जो एसेट की वैल्यू है वो भी बढ़ती रहेगी और जो मुझे रिटर्न आ रहा है वो मुझे बेसिकली इन्फ्लेशन को बीट कराएगी। बिल्कुल 100%। राइट, एंड देन इवेंचुअली आई कैन और उसी के साथ साथ फिर ऑब्वियसली मैं ये तो नहीं करूँगा कि मैं सारा प्रॉपर्टी पे लगा दूंगा, कुछ मसला वसला हो गया तो सारा हो गया। बिल्कुल ऐसा। सो हाउ डू आई हैव लाइक अ मेंटालिटी जिससे मैं कहूँ कि यार थोड़ा सा मैंने इधर लगाया हुआ है, थोड़ा सा मैंने उधर लगाया हुआ है, वो एक तो ये बात, और दूसरा और एवेन्यूज हैं क्या क्या? राइट। सो ओके, सबसे पहले तो डाइवर्सिफिकेशन की आपने बात की कि किस तरह डाइवर्सिफाई करें। मैंने आपको बताया म्यूचुअल फंड्स के विद इन भी आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, बट म्यूचुअल फंड से वही बात है, एक्सपेक्ट ना करें, ये मतलब बिल्डिंग प्रोसेस एक्सपेक्ट ना करें, आप डालेंगे तो एकदम ज़्यादा हो जाएगा। राइट। प्रॉपर्टी भी उस तरह। तो इस बेसिकली आपने रिस्क रिवॉर्ड इक्वेशन देखनी होती है, नंबर 1, और नंबर 2 व्हाट स्टेज ऑफ लाइफ यूर एट। ठीक है। तो अगर कोई 21 साल का 20 साल का बच्चा मुझे आके कहे मेरे पास 3 लाख रुपए हैं, हाँ पिछले साल आता, मैं उसे कहता 3 के 3 बिटकॉइन में डाल दो। ठीक है, हाँ ज़ाया भी हो गया तो व्हाट्स द हार्म। हाँ, पर इफ़ यू हैव अ फैमिली, अब थोड़े एडवांस उस पे हो, देन यू हैव टू बी मोर केयरफुल विद इट, देन आपको थोड़ा देखना पड़ता है। ठीक है, बिटकॉइन का भी एक्सपोजर लूँ, लेकिन जो लेस रिस्की एसेट्स हैं लाइक डिफेंस सर्टिफिकेट्स, सो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स हैं, डिफेंस सर्टिफिकेट्स हैं, दे आर बीटिंग द इन्फ्लेशन रेट, अच्छे रेट्स मिल रहे हैं। सो एटलीस्ट आपको इन्फ्लेशन रेट भी मिल रहा हो, इवन इफ यू जस्ट वांट टू सेव इट, then that is the way to go. Saving in cash doesn't make sense. ये जो है आपके डिफेंस सर्टिफिकेट्स हो गए, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स हो गए, व्हाट्स द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दीज? लाइक हो क्या रहा है? ये आपका पैसा, आप एक सर्टिफिकेट ले रहे हो, ये पैसा जा किसके पास रहा है, एंड हु गारंटीज के आपको ये इन्फ्लेशन बीट करेगा ये? राइट। तो वो क्योंकि इनकी यूजली फिक्स्ड रेट्स होते हैं, तो यू कैन एक्चुअली सी कि ओके अभी एवरेज इन्फ्लेशन ये जा रही है, अभी तो हमारी हाई है, बट यूजली आप ओवर द ईयर्स का एवरेज लेते हो क्योंकि वो चेंज होती रहती है। सो और क्योंकि उनके यूजली फिक्स रेट्स होते हैं, तो यू नो कि अच्छा है, अगर इन्फ्लेशन 7% है और इस सर्टिफिकेट का रेट 9% है, तो 2% तो मेरा ऊपर जा रहा है, और एटलीस्ट बीट तो करे। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये गवर्नमेंट्स होती हैं, इनको बाकी डेवलप्ड नेशंस में ज़्यादातर बॉन्ड्स कहते हैं। सो द गवर्नमेंट्स इशूज दीज बॉन्ड्स, राइट, और इसका कॉन्सेप्ट ये कि गवर्नमेंट्स रेज दिस मनी राइट फॉर डेवलपमेंट, राइट, ठीक है, और वो आपको रिटर्न दे देगी। गवर्नमेंट आगे इन्वेस्ट करेगी, उसमें से कुछ रिटर्न आपको दे देगा। ठीक है। ये वॉर टाइम्स में जब शुरू, आई थिंक फर्स्ट कॉन्सेप्ट अराउंड वॉर टाइम्स हुआ था, टू रेज मनी फॉर वॉर्स, गवर्नमेंट्स यूज्ड टू इशू बॉन्ड्स, और ये गारंटीड बाय द गवर्नमेंट होते हैं, इसलिए इनको रिस्क फ्री कहते हैं। गवर्नमेंट ने गारंटी किया हुआ है कि आपको रिटर्न मिलेगा और पैसे भी वापस मिलेंगे, या तो मुल्क तबाह होगा या पैसे वापस मिल जाएंगे। ऐसा ही है। पर आजकल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, वॉर बॉन्ड्स का इतना वो नहीं है, तो अब ज़्यादातर गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट करनी है तो सर्टिफिकेट्स इशू करते हैं। बाय द वे ये कंपनीज भी करती हैं। सो इफ़ यू आर इनटू दिस स्टफ यू कैन आल्सो सी कि कौन सी कंपनीज कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं। सो द कंपनी कैन रेज इन्वेस्टमेंट वाया एक्विटी, जो वेंचर कैपिटल की हमने बात की, और प्राइवेट एक्विटी की हो रहा है, और उस तरह रेज कर सकते हैं, या फिर वो बेसिकली बॉन्ड से रेज करते हैं जो कि डेट है। राइट, कि मुजम्मिल आप मुझे 2 लाख रुपए दें, मैं आपको पर ईयर इस पर 7% दूंगा, ये एक कॉर्पोरेट बॉन्ड है। राइट, तो ये होते हैं रिस्क फ्री, पर इफ़ दे आर बीटिंग इन्फ्लेशन और एटलीस्ट द सेम, देन इट्स अ गुड वे टू एक्चुअली सेव एंड सेफ गार्ड यो। तो आपका एक पोर्शन तो ये होगा। अगेन कोई 21, 22, 23 साल का कोई बंदी है, मुझे क्या है मेरे पास 3 लाख है, मैं क्या करूँ, मैं उनको ये नहीं कहूँगा बॉन्ड ले। राइट। तो आप किस स्टेज पे हैं, सो यू कैन सॉर्ट ऑफ डाइवर्सिफाई। सो जब आप इन्वेस्टमेंट्स गेज कर रहे होते हैं, यू कैन सी दैट। तो अब मैं ये जगह प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, बॉन्ड्स मुझे 9% दे रहे हैं, तो ज़ाहिर है अब अगर आप बॉन्ड्स आर रिस्क फ्री। राइट, इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बॉन्ड्स आर रिस्क फ्री, सो एनीथिंग एल्स आई वांट टू पुट मनी इन विल हैव अ हायर रिस्क देन अ बॉन्ड। राइट, ये आपने देख लेना। तो आपने देखना है, फिर कैलकुलेट ये करना है कि बॉन्ड से मुझे ज़्यादा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। वरना आप बंदे को यार मुझे बॉन्ड से 7%, 8% मिल रहा है, तुमसे मुझे 6% मिल रहा है, तो मैं बॉन्ड क्यों ना लूँ, तुम्हारे में तो रिस्क ज़्यादा है। राइट। तो ये चीज़ें अंडरस्टैंड करना इज द इन्वेस्टमेंट माइंडसेट।
राइट, कि जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हो आपको रिटर्न कब मिल रहा है और कब नहीं मिल रहा, और ये कितना रिस्क है अंडरस्टैंड उसके करना। अंदर। हाँ, बिल्कुल। ऑल्टरनेट के ऊपर अगर मैं इस पे इतना रिस्क है तो ऑल्टरनेट के ऊपर अगर मेरे पास लेस रिस्की और ऑप्शन है तो लॉजिकली आई विल मूव टुवर्ड्स दैट। एंड आई थिंक वही वाली बात है कि अगर फॉर एग्जांपल इफ आई एम 23-year-old एंड आई हैव मेड सम मनी थ्रू इवन, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि ब्लॉगिंग के थ्रू पैसा कमा रहे हैं कि उनके पास डॉलर में आ रहा है और वो पड़ा हुआ है, राइट। तो उसको वो फॉर एग्जांपल डाइवर्सिफाई इस तरह कर सकते हैं कि ठीक है उन्होंने स्टार्ट में बिटकॉइन पे लगा लिया, बिटकॉइन अब ग्रो कर गया, अब उसमें से कुछ पैसा वो निकाल के बॉन्ड में डाल दें कि यार मैं ब्लॉक कर रहा हूँ कुछ पैसा, Right, कि मैं ये नहीं चाहता कि मेरा सारा पैसा जो बना वो सारा एकदम से निकल गया, गैम्बल नहीं करना चाहता मैं। बिल्कुल, आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी नेटवर्थ इस तरह बढ़ाऊंगा कि मैं थोड़ा थोड़ा बिटवीन माई इन्वेस्टमेंट्स, द रिस्कियर इन्वेस्टमेंट्स, जैसे जैसे वो बनती जाती है मैं कुछ निकाल कर सॉर्ट ऑफ रिस्क फ्री लॉक करते जाऊँगा। 100%। इसमें एक और चीज़ मैं कहना चाह रहा था कि जब आप रिस्क कंपेयर कर रहे होते हो ना और आप देखते हो कि यार ये चीज़ मुझे इतना रिटर्न दे रही है जो रिस्क फ्री है, ये मीना भी शायद आपके शो पे आई थी और उन्होंने बात की होगी कि इसलिए वीसी को 10x चाहिए होता है। सो वीसी इज़ द हाईएस्ट रिस्क। राइट। तो कोई इन्वेस्टर से जब कोई वीसी फंड मैनेजर पैसे रेज करने जाता है, वो कहता है मैं आपको 10x, अगर वो ना कर सके तो वो यही कहेगा यार मैं प्राइवेट इक्विटी में क्यों ना डालूँ, मैं इस कॉर्पोरेट बॉन्ड में क्यों ना डालूँ, मैं इस जगह प्रॉपर्टी क्यों ना ले लूँ, ये मुझे 10-12% दे देगी। तो वेंचर कैपिटल फिर ऐसा रिस्क है कि उसका रिटर्न भी उतना ही होना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि अदरवाइज फिर वो justify it. इतना पैसा 10 साल में अगर मैं जाकर देखूं तो आप बैंक से लोन निकाल लें, आपको सिर्फ डबल करके देना है 10 साल में वापस। बिल्कुल राइट। सो आप वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाके, लेकिन अगेन वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो रिस्क ले रहा है उसके बिल्कुल लिए। दैट्स व्हाई 100%। मेक सेंस। सो अच्छा, एक चीज़ हम पाकिस्तान में बड़ा सुनते हैं कि जी पाकिस्तान में जनरली सेविंग्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे बैंक्स में इतना पैसा नहीं है, हमारा इकॉनमी वाइट नहीं है या सिस्टम में नहीं है इकॉनमी। और इसी के साथ साथ हम देखते भी हैं कि हमारे यहाँ लोगों ने जो है ना वो एक तो उसके साथ रिलीजन भी कनेक्ट कर दिया, विच वाज क्वाइट ऑड कंसिडरिंग कि रिलीजन में तो बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट एंड तजारत वो हमेशा प्रमोट की गई थी। बट वो क्या करते हैं कि जी वो पैसा ना अपने संदूकों में बंद करके रखते हैं, कैश होल्ड करते हैं। वो हमेशा वो कॉन्सेप्ट है रेनी डेज के लिए कैश होल्ड करो। हाउ डू यू थिंक दैट सॉर्ट ऑफ लाइक किसी भी इकोनॉमी के अंदर अगर आप पैसा अपना छुपा कर रख लेंगे तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी एज अ होल को? अच्छा, ये इस पर बहुत देर डिस्कशन हो सकती है बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली फंडामेंटल सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद इन इकनॉमिक्स। एक होती है ऑस्ट्रियन इकनॉमिक्स, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आई एम जस्ट गोना गिव एन ओवरव्यू। एक होती है ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स और एक है कीनिजियन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स, कीनिजियन। सो आजकल जो है हम कीनिजियन फॉलो कर रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया करिए, इट्स डेट बेस्ड। वो कहती है कि सेविंग ना करें, राइट, सेविंग नहीं होनी चाहिए इकॉनमी, इट डजंट हेल्प। जो ऑस्ट्रियन है वो कहते हैं सेविंग होनी चाहिए। अच्छा, राइट, बट एज फाइन, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए हम करते हैं। अगर आपने सेविंग करनी भी है, फिर वो मसला यही है जब आप कैश होल्ड करेंगे। पाकिस्तान की एक अच्छी बात यह है कि हम काफ़ी सेविंग अपनी गोल्ड में भी होल्ड करते हैं, राइट, और गोल्ड जो है वो इन्फ्लेशन को यूजली प्रोटेक्टेड होता है, प्रोटेक्टेड होता है, विच इज़ गुड। कैश होल्ड करेंगे तो इकोनॉमी को ओवरऑल तो ठीक है देख लें, पर आपको ही नुकसान हो रहा है बिकॉज डी वैल्यू होगी। एंड आई नो बहुत सारे लोग यहाँ कैश होल्ड करते हैं, पर क्योंकि वो चीज़ उनको सामने नहीं नज़र आती और ये कैलकुलेशंस वो नज़र नहीं आ रही होती, तो उनको पता नहीं चल रहा होता, पर असल में ईयर ऑन ईयर उनकी वो वैल्यू एक्चुअली सेविंग नहीं है, वो एक्सपेंस ही हो रहा है कह लें एक तरह से। राइट, सो फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह कहूँगा ना, अगर मैं किसी ने पाकिस्तान में अगर बैंक अकाउंट खोला हुआ है ना, उसमें 25 लाख रुपया पड़ा हुआ है, तो वो उसको पूरा साल के लिए पड़ा हुआ है, उसने नहीं निकालना वो पैसा, लेकिन वो करंट अकाउंट में पड़ा हुआ है। वो सेविंग्स अकाउंट में नहीं जाएगा कि कोई बंदा उसको निकाल के लोन लेके कोई कंपनी खड़ी कर ले, वो बस पड़ा हुआ है कि कहीं मूव ना हो जाए। लाइक एक बेसिक एक इकोनॉमिक का वो है कि पैसा घूमेगा सोसाइटी के अंदर तो ग्रोथ आएगी, प्रोडक्टिविटी आएगी। Somehow we don't, and one of the reasons why I really wanted to do this podcast as well was because yes, we can talk about the rich people, what are the rich people doing, but the rich people generally tend to, again आपने बताया वो इन्फ्लेशन से बचने के लिए वो पैसा घुमा ही रहे होते हैं। It's generally your middle class जिसका नंबर बहुत बड़ा है, और वो 5 लाख का टिकट जब मिलकर आता है तो वो बहुत बड़ा नंबर बन जाता है, और वो बिल्कुल भी प्रोडक्टिव इकोनॉमी में पैसा नहीं लगा रहे हैं। So how do you see that? Right. So again ये schools of theories है। Do you think अगर ऑस्ट्रियन के तहत it's fine to do that as well? It's fine to do that. Okay. I think जो अब ये different economists का इसमें different हुआ है, but me personally I think कि जो पैसा in circulation की बात है ना, आजकल 90% आपका पैसा is actual cash, 10% is actual cash and 90% is credit. Right. That is not sort of real money backed by anything. It is just like the trust in the dollar या जो भी कह लें उसको. Right.
सो वो चीज़ आपकी इकोनॉमी तो स्टिमुलेट करता है, बट व्हाट इट्स एक्चुअली डूइंग इज दैट यू आर बोरोइंग फ्रॉम योर फ्यूचर जनरेशंस, फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ. राइट. अब पाकिस्तान में लोन लेना इतना आसान नहीं है या जो भी है, लेकिन डेवलप कंट्रीज़ में बड़े आराम से मिल मजा जाता के. हाँ. है, क्योंकि वो कंज्यूमरिज्म प्रमोट करते हैं. एंड देयर लाइक सप्लाई है तो इस सप्लाई को डिमांड को सप्लाई मीट करनी चाहिए, सप्लाई को डिमांड मीट करने की ज़रूरत है. तो हाँ. आप लोगों को क्रेडिट दो ताकि ये चीज़ें खरीदें. तो असल में आप क्या कर रहे होते हैं, वो पे बैक तो करना है, हाँ. लेकिन आपके फ्यूचर जनरेशन्स ने करना है. राइट. और ये कीनजियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, विच जो कि अब मुझे लग रहा है जिस पॉइंट पे हम आ गए हैं उसका शायद लास्ट साइकिल हो. पर आई थिंक इफ, लेकिन आपकी मुझे बात समझ आ रही है, राइट? मैं एक बंदा हूँ, मेरे पास 10 लाख है, 15 लाख है, मुझे जो है ना ऑस्ट्रेलियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की समझ भी आती है, ठीक है, कह लें. मैं उसको डाल देता हूँ सेविंग में. बाकी दुनिया तो नहीं उस तरह चल रही. हाँ. तो बाकी दुनिया चलती तो शायद मेरा पैसे उतने तेज डिवैल्यू ना होते कि सब सेव कर रहे हैं. हाँ. वो नहीं कर रहे, पर मैं कर रहा हूँ तो मेरी तो डिवैल्यू होगी. हाँ. राइट. राइट. तो जहाँ तक आपका सवाल है कि इकोनॉमी नहीं स्टिमुलेट होती, मैं इससे 100% नहीं एग्री करता. आई थिंक अगर मैथ्स या जनरल कॉन्सेप्ट होता सेविंग का, तो दैट इज ऑल्सो अ फाइन, दैट इज आई थिंक मे बी अ बेटर वे. अच्छा, सो आई थिंक मैं थोड़ा पर ये है वेट करके जाने वाला था इस कॉन्वर्सेशन में, बट लेट्स डाइव इनटू इट. राइट, लाइक आपने बेसिकली ये जो कह रहे हैं ना, ये एक बड़ी पेसिमिस्टिक ओवरव्यू फॉर पाकिस्तान को एक बड़ा ऑप्टिमिस्टिक ओवरव्यू फॉर पाकिस्तान बनाने लगे. मैं जिस थॉट से आ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जी अगेन अंडरस्टैंडेबली आपने बोला कि जो ग्लोबल इस वक्त जो निज़ाम चल रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ और मैं उसको देख के कह रहा हूँ कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं. तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार हमारे यहाँ ग्लोबली क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली डिमांड बनाई जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो ग्रो भी उसी हिसाब से कर रहे हैं. और उसमें हो क्या रहा है कि जाहिर है इट सीम्स फैंसी फॉर सिंपल ह्यूमन लाइक माई सेल्फ, इट सीम्स फैंसी. न्यू कार्स, न्यू हाउसेज, गुड प्रोडक्ट्स दैट देयर बाइंग. उसका ऑल्टरनेट आपने उसको इस तरह बताया कि इफेक्टिवली दे आर बोरोइंग फ्रॉम देयर फ्यूचर जनरेशंस. जो हमने फिर हम अमेरिका की बात करते हैं तो वहाँ पर स्टूडेंट डेट उनका इतना इंसेन हुआ है उनके यहाँ. अभी जो फॉर एग्जांपल पोस्ट कोविड चल रहा है इस वक्त, यूरोप और अमेरिका बोथ, दे आर जस्ट प्रिंटिंग मनी लाइक एनीथिंग. इट्स लाइक कि बस ठीक है, घुमाई जाओ, प्रिंट करी जाओ, नोबडी इज गोना आस्क. सो ठीक है, एक तो ये वाली कॉन्वर्जेशन होगी सेविंग से हम आगे आते हैं. कोविड के अंदर आपको क्या लगता है कि जो इस वक्त ये चल रहा है कि पैसा कैश प्रिंट करो, नॉट बैक बाय एनीथिंग, कैश प्रिंट करो और स्टिमुलस चेक्स भेज दो, इज दिस सस्टेनेबल? दिस इज नॉट सस्टेनेबल इन माई ओपिनियन, बिकॉज इस एक जो करेंसी है ना, पेपर करेंसी, उसको क्या चीज़ बैक करी होती है? उसको आपका ट्रस्ट इन दैट पेपर इटसेल्फ, ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट दैट इज इशूइंग इट, एंड ट्रस्ट इन इट्स यूज, राइट? So dollar very trustworthy over the last few decades, because दुनिया की it's called the world reserve currency इसको कहते हैं. तो दुनिया की ट्रेड जो है ना, यूएस क्योंकि किंग है, यूएस ने कहा दुनिया की ट्रेड आपने डॉलर में ही करनी है, आपने ऑयल खरीदना डॉलर में ही है. राइट. पर अगर दुनिया का ट्रस्ट इन द यूएस थोड़ा सा वेवर होना शुरू हो जाए, या अगर कोई और पावर लाइक चाइना ऊपर आना शुरू हो जाए, और वो इसको अपोज करना शुरू हो जाए, वो कहेगा जी हमें तो ट्रेड करनी है येन में, हाँ यूरो में करनी है, येन में करनी है, रूबल्स में करनी है, जिसमें भी करनी है, राइट, डॉलर में नहीं करनी. बस डॉलर को हम छोड़ रहे हैं क्योंकि उसके भी पॉलिटिकल जो भी रीजंस है कि डॉलर को उन्होंने वेपनाइज भी कर दिया है. किसी कंट्री को उन्होंने पनिश करना होता है तो उनको कहते हैं आप स्विफ्ट सिस्टम से हम उतार देंगे, आपको एक्सेसिबल ही नहीं होगा आपको ट्रेड, राइट? तो उन्होंने डॉलर को वेपनाइज किया, तो आहिस्ता आहिस्ता कंट्रीज उससे पुट ऑफ होती हैं. पर ज़्यादातर जो कंट्रीज पुट ऑफ होती हैं वो छोटी कंट्रीज होती हैं, अमेरिका कहता है व्हाटएवर, पर अगर कोई बड़ी कंट्री आ जाए लाइक चाइना, राइट, और वो अपोज करना शुरू हो जाए, और यूएस खुद चाइना पे इतना डिपेंडेंट है फॉर सप्लाई, उन्होंने सारी अपनी सप्लाई ओवर द इयर्स एक्सपोर्ट कर दिया टू चाइना, राइट, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट्स राइज हो सकते हैं. और अगर उस ट्रस्ट इन दैट पर्टिकुलर पेपर और दैट गवर्नमेंट वेवर्स, देन आई थिंक इट कुड बी अ रियली क्विकिश सॉर्ट ऑफ, जाहिर है बड़ा एम्पायर है, टाइम लगता है, डाउनफॉल फॉर द डॉलर. एंड इफ द डॉलर हैज अ डाउनफॉल, देन एवरी पेपर करेंसी इन द वर्ल्ड इज इन ट्रबल, बिकॉज एवरी सिंगल करेंसी इज पेग्ड टू द डॉलर. सो ये सारी चीज़ें हैं. सो जो कोविड में सारी प्रिंट हो रहे हैं पैसे, हो क्या रहा है कि इन्फ्लेशन है, राइट, पर आपको जो कंज्यूमर गुड्स और जो एफएमसीजी या जो भी कहेंगे आप डेली यूज़ में होते हैं, उसकी इन्फ्लेशन आपको उतनी तेज़ नहीं नज़र आएगी जितने अगर आप बाकी मार्केट्स देखें आपको नज़र आएगी. यूएस स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाइज, राइट, गोल्ड ऑल टाइम हाई के करीब है, बिटकॉइन वगैरह
ऑल टाइम हाई टच कर चुके हैं. Right. सो दीज आर इंडिकेटर्स दैट यूएस की वैल्यू कम हो रही है अगेंस्ट एवरीथिंग, स्पेशली गोल्ड. राइट, गोल्ड इज अ रियली गुड इंडिकेटर, राइट. क्योंकि वो इतने सालों से यूज, मतलब सेंचुरीज जब से जो भी है. सो इफ यू लुक एट दोज मार्कर्स तो आपको नजर आ रहा है. पर उन मार्कर्स में क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि जो ज़्यादा पैसा प्रिंट हो रहा है वो फंड्स के पास ही जा रहा है, वो बैंक्स के पास ही जा रहा है, वो कंपनीज के पास ही जा रहा है. वो अपने स्टॉक्स बाय बैक करते हैं, फंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड लेके रखते हैं, बिटकॉइन, अब बिटकॉइन में भी आ रहे हैं या क्रिप्टो करेंसीज में आ रहे हैं. राइट. सो इसलिए हमें डेली नहीं पता चलता कि कितनी तेज़ी से इन्फ्लेशन हो रही है, क्योंकि वो लोगों तक तो नहीं पहुंच रहे पैसे. अब वो शायद कोई स्टिमुलस चेक वगैरह दे रहे हैं, पर वो सब कंट्रीज में नहीं दे रहे. हाँ, और वो उसमें वो यही अगर वो होता तो फिर उनको आपकी डेली चीज़ों में भी नजर लोगों का जब ये वो भी कहना होगा है कि स्टिमुलस चेक्स भी इवेंचुअली ट्रिकल डाउन के ऊपर बिजनेस तक रीच करते हैं और फिर वो बिजनेस के बाद वापस इट्स लाइक अ कंटिन्यूस, या तो आप स्टिमुलस चेक्स देते रहे. ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स तो बस एम ही ड्रामा ही है ना, वो है कुछ नहीं. एंड द इनइक्वालिटी दैट दिस इज एसेंशियली क्रिएटिंग कि ठीक है आप स्टॉक मार्केट की प्राइसेस जो स्काई हाई जा रही हैं तो यू आर गेटिंग लाइक दीज मेगा बिलियनर ट्रिलियनर्स की तरफ हम जा रहे हैं. एंड द एवरेज जो आपका मैसेज हैं वो देयर गेटिंग अंडर डेट एवरी डे. या सो द वेल्थ जो इनइक्वालिटी है वो भी ऑल टाइम हाई गैप में आ गई है. सो सबसे ज़्यादा पैसा भी उन्होंने कमाया जो पहले बिलियनर थे. हाँ, राइट. एलोन मस्क टॉप 10-20 आई डोंट नो उसमें भी नहीं था. हाँ. और वो नाउ उसने कुछ अरसे के लिए जेफ बेजोस को भी उसने नंबर 1 पोजीशन के लिए भी वो कर दिया. राइट. सो द इन्फ्लेशन मार्कर्स आर देयर, इट्स इन द स्टॉक मार्केट, इट्स इन योर सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स. कि लोगों को लग रहा है कि कोई मसला है, तो लोग जब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को लगता है ना कि कोई प्रॉब्लम है तो वो सेफ एसेट्स में जाते हैं. तो सेफ एसेट्स में गोल्ड होता है. हाँ. जो थोड़े ट्रेडिशनल इन्वेस्टर हैं, सेफ एसेट्स में गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं. और गवर्नमेंट किसकी सबसे स्टेबल है या सबसे ट्रस्टवर्दी है? यूएस की. तो यूएस के बॉन्ड्स होते हैं. Right. या जिसके भी, या यूरोप के भी. अब उनके आप इंटरेस्ट रेट्स देखें जो बॉन्ड्स पे हैं, वो नेगेटिव, कुछ कंट्रीज में नेगेटिव में चले गए. आप हमें इन्वेस्ट करें, हम आपके पैसे काट के आपको वापस करेंगे थोड़े से. हाँ. या फिर बिल्कुल जीरो के करीब है, 1%. तो इसका मतलब ज़्यादा पैसे उसमें जा रहे हैं. हाँ. इसका मतलब लोगों को लग रहा है कि कोई मसला है. हाँ. तो हम सेफ चीज़ों में ही डालो. गोल्ड में डालो, गोल्ड की प्राइस चढ़ गई. हाँ. उसमें बॉन्ड्स में डालो, बॉन्ड्स के क्योंकि बहुत डिमांड है बॉन्ड्स की, तो इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है. राइट. तो ये मार्कर्स हैं, लेकिन आई डोंट नो बाय डिजाइन है या वो है, आम आदमी तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती. आम आदमी अभी भी इस जोन में है कि नहीं वी आर गोइंग टू हैव अ वी शेप. नो वी शेप यार, डब्ल्यू शेप तक हम रिकवरी तक पहुंचे. तो हो गई है ना. अगर आप सिर्फ स्टॉक मार्केट देखते हैं तो हो गई है. हाँ. कह लो हो गई है. नहीं, बट देन अगेन वो ये दिसंबर की रिकॉर्ड कनेक्टेड टू रियलिटी. या लाइक दिसंबर के उनके जो रिकॉर्ड जॉबलेस क्लेम्स आए हुए हैं. एग्जैक्टली. एक तरफ रिकॉर्ड जॉबलेस क्लेम्स आ रहे हैं. हाँ. एक तरफ कंपनीज ऑल टाइम हाईज बता रही हैं. हाँ. तो कोई तो मिसमैच है. तो वो स्टॉक मार्केट जो है वो रियलिटी नहीं बता रहा. बॉन्ड मार्केट, गोल्ड मार्केट, ये मार्कर्स आपको नज़र आ रहे हैं कि डिवैल्यूएशन हो रही है ज़्यादा तेज़ी से करेंसीज की. हाँ. और ये प्रिंटिंग जो है ये कैचअप करेगी. अभी तो बहुत चीज़ें होनी है. राइट. मॉर्गेज उन्होंने पेमेंट्स डिले कर दी थी, मोरेटोरियम्स दे दी थी 6 महीने. अब जब 6 महीने बाद देना पड़ेगा. तो ये तो नहीं ना कि खत्म तो नहीं हुए, देने तो हैं, बस वो पुराने सारे पूरे साल के देने पड़े तो वो तो वर्चुअली इम्पॉसिबल हो जाएगा लोगों के लिए देने. Exactly. इनफैक्ट आई वाज रीडिंग समवेयर कि a lot of people what they're doing is people who can actually afford as well, they're now not paying that and they're investing that money into stock market and these risky areas. I mean fine, why not, you know. अगर ये बड़े बड़े सारे ये गेम खेलते हैं तो अब छोटे वालों को भी ऑप्शन मिल गया है. मैंने इट्स नॉट एडवाइजेबल, इट्स रियली रिस्की गेम. Yeah. But at least you are now also playing that game which the big guys played and you didn't get a chance to play with Robinhood, with everything. या जो भी पाकिस्तान में भी अब ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट आप खोल सकते हैं and you can start एक्सपेरिमेंटिंग. या जो भी जाहिर है उसमें रिसर्च होनी चाहिए. एडवाइजेबल नहीं है कि वैसे ही आंखें बंद करी बंदा कि सब कुछ ऊपर जा रहा है तो मैं ले लूँ. हाँ. लेकिन आई थिंक इट्स गुड कि लोग अपनी वैल्यू कुछ प्रिजर्व करें, ताकि वो भी वो गेम ज्वाइन करके जिन चीज़ों में इन्फ्लेशन नज़र आ रही है उसमें वो भी डाल सकें जो चीज़ बीट करी है इन्फ्लेशन को, क्योंकि बाकी चीज़ें अब नहीं कर रही. Right, so the little guy is getting a piece of the pie as well. But do you think this sort of speculative, I mean, it's all speculation, right? Tesla is not making any money. I mean, they are making money, but the price of the stock is 1,500 times what they're earning in a year. Yeah. So, obviously, एक बेसिक देख कर आपको अनसस्टेनेबिलिटी उसकी नज़र आती है, बट आपको एक स्पेकुलेटिव नेचर भी नज़र आती है. और जब इस किस्म का गैम्बलिंग एनवायरनमेंट आ जाए, so how do you think, like what is the potential outcome? ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि fundamentals don't make any sense, there's a lot of up and down going on right now, but what are the potential outcomes? And if I can say कि अगर आप मुझे 3 बता सकें, the good, the okay and the worst case scenario, what would those be? The good scenario ये कि you have options
to hedge yourself against everything. You still have hard assets that you can go into. Good scenario छोटे देखें, जब क्राइसिस आती है ना तो काफ़ी लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जो उनको पहले नहीं मिल सकती. कोई ऐसे ट्रेंड्स क्रिएट हो जाते हैं, और ट्रेंड्स की हमने अभी बात नहीं की कि आप कोई मेगा ट्रेंड फॉलो कर सकते हो. आप फॉलो कर सकते हो यार दुनिया की, ठीक है, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी दुनिया की करेंसी डिवैल्यू हो रही है और भी होती रहेगी, तो मैं भी गोल्ड लेके रख लेता हूँ, राइट. और गोल्ड पाकिस्तानियों के लिए बड़ा सिंपल सी चीज़ है, ले लेते हैं, उनको कोई मसला नहीं उसमें, समझने की भी वो समझ भी है, हिस्ट्री है, बाहर खरीदने जाके खरीद के रख लें आप लॉकर में, लेके रख लेते हैं. तो ऐसे ट्रेंड्स पे एक्चुअली लिटिल गाय को अगर वो नॉर्मल दिनों में गोल्ड लेते हैं तो गोल्ड बस इन्फ्लेशन कवर कर रही होती है. पर अगर वो उस मेटा ट्रेंड को फॉलो करें कि यार करेंसीज बहुत तेज़ी से डिवैल्यू हो रही हैं, और शायद और तेज़ी से हों, और पैसे प्रिंट हो रहे हैं, और तेज़ी से डिवैल्यू हो सकती है अगर चाइना यूएस के और टेंशन हुए, और अगर चाइना अपर हैंड लेना शुरू करे और कोई वाकई मसला हो रिजर्व करेंसी को, तो फिर कहीं भी जा सकता है. तो फिर वहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी है इस मेगा ट्रेंड की. तो ये गुड है. ठीक है. सिस्टम को बचाने के लिए मुझे गुड अभी मुझे नहीं नज़र आ रहा. जाहिर है वो बड़े बड़े सेंट्रल बैंकर बैठे हुए हैं, उनका कोई प्लान है, वो कर रहे हैं, मे बी दे हैव थिंग्स अंडर कंट्रोल. अच्छा, पता नहीं, मैं तो आई हैव बीन रीडिंग स्टफ फॉर 6 months एंड इट जस्ट सीम्स लाइक दे आर जस्ट लाइक कि वो चला रहे हैं. चलाई जाओ. ये रखा है कि वो चला रहे हैं, और हो सकता है वो भी चेंज ऑफ सिस्टम की तरफ जाएं, हो सकता है वो भी डिजिटल करेंसीज को अडॉप्ट कर लें, कुछ तो वो करेंगे, राइट. मुझे लग रहा है, बट वो कर रहे हैं, मे बी दे हैव सम प्लान, राइट. पर मुझे यहाँ से कोई उसे अपॉर्चुनिटी वाइज इन्वेस्टमेंट वाइज देंगे तो अब जो है ना, ये गोल्ड जैसी सेफ चीज़ भी आपको रिटर्न दे सकती है, राइट. अब कितनी एसिमेट्रिक बेट है कि आपको कोई लो रिस्क हाई रिटर्न चीज़ मिल जाए. ये चीज़ें फिर ऐसे मेगा ट्रेंड या मेटा ट्रेंड से ही आती हैं, और आजकल ये मेटा ट्रेंड है कि हो सकता है डी-डॉलराइजेशन हो दुनिया में. डी-डॉलराइजेशन का मतलब है सारी करेंसीज. अब जब पाकिस्तानी रुपये डॉलर के अगेंस्ट वीक हुआ तो इसका मतलब ये नहीं था कि डॉलर स्ट्रांग हो रहा था, इसका मतलब ये था कि पाकिस्तानी करेंसी उससे ज़्यादा तेज़ी, वो भी डिवैल्यू हो रहा था, लेकिन पाकिस्तानी करेंसी उससे ज़्यादा तेज़ डिवैल्यू हो रही थी, राइट. तो अगर आपको ये मेटा ट्रेंड नज़र आ रहा है, तो आपको एक गोल्ड जैसी चीज़ में हो सकता है कि आपको लो रिस्क हाई रिटर्न नज़र आ रहा हो अभी. अगेन मैं कोई एडवाइजर नहीं हूँ इन्वेस्टमेंट, और मैं कोई एडवाइस नहीं. दिस इज नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, दिस इज जस्ट एन एनालिसिस, राइट. क्या अबाउट ट्रेंड, क्या बात कर रहे हैं कि ट्रेंड्स को आप किस तरह देख सकते हो. मुझे गुड आउटकम यही लगती है कि गोल्ड तो मैं वैसे एनी ट्रेंड दैट यू कैन सी इन दिस मार्केट. फॉर एग्जाम्पल अगर स्टॉक मार्केट का कोई ट्रेंड देख लेता साल पहले, कोई देख लेता यार पेंडेमिक आया, बहुत सारे पैसे प्रिंट होंगे, इसलिए मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ रिसर्च, रीडिंग, लर्निंग, ये आप डेली अगर आपने डालें तो फिर आपको ये ट्रेंड्स नज़र आ जाते हैं. देयर लाइक हिडन इन प्लेन साइट, इफ़ यू गो लुकिंग फॉर देम यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट. इफ़ यू डोंट तो आपको पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है. तो अगर किसी को ट्रेंड नज़र आ जाता है यार स्टॉक मार्केट क्रैश हुई है, बहुत सारे पैसे प्रिंट हुए हैं, ये सारे पैसे जो है ना फंड्स को मिलेंगे, कंपनीज को मिलेंगे, और ये अपना स्टॉक बायबैक करेंगे, तो चढ़ेगा ही चढ़ेगा. बेशक दुनिया के हालात क्या हो, मार्केट चढ़ेगी, क्योंकि फेड जो है, सेंट्रल बैंक जो है, उसको बैक कर रहे हैं. तो फिर वो उस ट्रेंड देखता तो उसने बहुत गेम स्टॉप पे लोगों ने बहुत पैसे कमा लिए, टेस्ला पे लोगों ने बहुत, उन्होंने स्पेकुलेशन तो है, पर यू स्पेकुलेटिंग ऑन अ मेटा ट्रेंड, राइट. सो दैट्स द गुड पार्ट ऑफ इट, राइट. कि ज़ाहिर है जो पेंडेमिक है, इट वाज रियली बैड फॉर लॉट ऑफ पीपल, बट at the same time if someone followed the trends they could have seen these opportunities and can still see some opportunities to get in, कि वो यार अपनी वेल्थ तो बचाएं, या अपनी वेल्थ इंक्रीज भी कर सकते हैं. वट एवर इज टू कम, वट एवर कम्स आफ्टर ईयर 2 ईयर, क्या रह जाता है फिएट करेंसीज का, बाउंस बैक कर लेती हैं, रिकवरी कर लेती हैं, तो वट एवर. बट इस ट्रेंड के दौरान हाउ दे कैन कैश इन, वरना नॉर्मल दिनों में, स्टेबल दिनों में छोटे इन्वेस्टर को ये अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती. बिटकॉइन इज अनदर एग्जाम्पल, उसकी भी हम बात कर सकते हैं, राइट. एंड व्हाट्स द वर्स्ट केस सिनेरियो जो करंट सिचुएशन है दुनिया की? The worst case scenario is pretty bad. Okay. क्योंकि कुछ भी हो सकता है. अब worst case scenario ये है कि small businesses बहुत सारे हिट हुए हैं, राइट. और आजकल आपने ट्रेंड्स भी देखे होंगे, फेसबुक, अमेज़ॉन के ख़िलाफ़ थोड़ी सी बातें शुरू हो रही हैं, गूगल के ख़िलाफ़, कि ये मोनोपोलीज टाइप बन रही हैं, राइट. क्योंकि ये पहली कोई अच्छा बिजनेस बनता था तो ये लोग एक्वायर कर लेते थे. यूट्यूब आया, गूगल ने ले लिया. ऑक्यूलस आया, या इंस्टाग्राम आया, व्हाट्सएप आया, फेसबुक ने ले लिया. माइक्रोसॉफ्ट अपने वो कर रहा है. सो मसला ये, अब स्मॉल बिजनेसेस जो हैं, अब पेंडेमिक की वजह से काफ़ी सारे शट डाउन हो गए. जो स्टिमुलस मिले थे वो बड़े बिजनेस को मिले, राइट. स्मॉल बिजनेस को नहीं मिले, वो हो गए शट डाउन. इसका क्या मतलब है? अगर ग्रोसरी स्टोर, छोटे छोटे किराना स्टोर, मॉम एंड पॉप शॉप्स बंद हो रहे हैं,
तो किसको फ़ायदा है? वॉलमार्ट को फ़ायदा है। जो लोग वॉलमार्ट नहीं भी जा रहे थे, पॉप शॉप जा रहे थे, जो भी, अब वो भी वॉलमार्ट ही आएंगे। वॉल सारे बेसिकली कैनिबलाइज कर लेगा सबको। राइट। तो वर्स्ट केस यही है कि बेसिकली हम we are and we will start being dependent more and more on a select few companies, organizations, and basically they will make the rules. Right. And हमें शायद कोई वो यूनिवर्सल बेसिक इनकम या कुछ पे कर लें कि ठीक है यार, तुम लोगों ने ज़िंदगी गुजारनी है ना, हाँ, तो मिनिमम ये रखो। ज़िंदगी गुजारने के लिए तुम्हें हम दे देंगे, हाँ, बाकी जो हम कहेंगे वो करना है। राइट। सो That is the worst case scenario. You live in a world where everything is stored, जो कि अभी भी in a way है। आपने ये करना है, ये अगर आप बिल्कुल ही थोड़ा डार्क हो जाए, ये सोचना है, हाँ, जो हम कहेंगे वो सही है। वेरी ऑरवेलियन सॉर्ट ऑफ फ्यूचर। बे ऑरवेलियन, मतलब अगर वर्ड्स की बात करें तो मेरे दिमाग में तो ये आता है, क्योंकि जिस तरफ आपको ट्रेंड अगेन नजर आ रहा है कि ये लोग बहुत तेजी से मोनोपलाइज हो रहा है सब कुछ। एंड विद द आइडिया ऑफ कि द डेटा जो गैदर कर रहे हैं, जो वो उसको कनेक्ट करते हैं उन सारी चीज़ों को, तो दे। और जाहिर है ये मैं टाइमलाइन थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे दूँ, ये उसका मतलब ये नहीं है मैं कह रहा कि अगले साल हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा, like 10, 15, 20, whatever. Yeah, but that's where the world is going. You can see the trend towards Yeah. that. And how you can profit from a trend is basically on your research कि ये भी ट्रेंड अगर आपने पिकअप कर लिया तो आप उसमें से कैसे कर सकते हैं। हाँ, ये दुनिया में तो तबाह होना ही है, तो मैं उससे थोड़े पैसे तो बना रहा हूँ ना। व्हाट्स द नेवर लेट अ गुड क्राइसिस गो टू वेस्ट। ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की बड़ी वो है, कहावत है। मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। बिटकॉइन का आपने कहा जी, बिटकॉइन का हम थोड़ा सा वो करते हैं। वेयर डू यू सी दैट? बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज इन पाकिस्तान ऑब्वियसली एज वेल कि जी बिटकॉइन जा रहा है 50,000 पे चला गया, अब 3 लाख पे तो बस गया जी, गया ही गया। Where do you see that as an investment standpoint? Because obviously what we're seeing right now is that Bitcoin does not have any real utility at this point in time. Probably the only thing that you can say is that it's a digital alternative to gold. Right? And then question mark उसमें यही आ जाता है कि yes, as an investor it's like again वो एक gamble है। आपको नज़र आ रहा है कि यार अगर लोगों ने पैसा लगाने तो आज भी अगर मैं डाल दूँ, वो थोड़ा सा गिर के 30 पे आया, मैंने लगा दिया, वो 60 पे चला गया, मैंने बेच दिया और मैंने कुछ उसको डबल करके पैसे बना लिए। But in the grand scheme of things, when you're talking about a digital yuan, I think जो Chinese लेकर आ रहे हैं, when you're looking at and the digital yuan is probably the most fascinating thing for me, because what they're effectively saying is they're saying yes, we're going towards the fiat currency concept isn't working, we're going towards a more modern way of how currency is going to work. और उसमें मैं उसका एक यूज़ केस देख रहा था कि जब अगर हमने यूनिवर्सल बेसिक इनकम की तरफ जाना है या हमने स्टिमुलस चेक्स की तरफ जाना है, तो विद द डिजिटल करेंसी लाइक अ डिजिटल yuan, you can effectively give people timed currency as well. You can give them currency like, you know, here's your currency, but you can only use this for grocery stores. And that level of control again makes everything जो आपका paper currency, that completely obsolete. But then with the central banked digital currency, जो आपका पूरा का पूरा concept है कि you know these bitcoins, decentralization, you know we're gonna stick it up to the big guy. That's gone again. And honestly speaking, that's how I think it will end up. It is really good. I hope कि it, you know, delivers the results जो लोगों को नज़र आ रहा था कि बिटकॉइन जो है डेमोक्रेटाइज कर रहा है, हमें सेंट्रल बैंक्स की ज़रूरत नहीं होगी, हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। पर मसला ये है कि फियाट करेंसीज भी बने इसलिए थे क्योंकि वो गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकते हैं। और गवर्नमेंट किस तरह कंट्रोल करती हैं और किस तरह वो इंश्योर करती हैं कि आप यूज़ करें, कहेगी यार टैक्स आपने मुझे रुपये में देना है, तो इसका मतलब रुपये की डिमांड रहेगी, आपने टैक्स उसमें देना है। लोन्स आपने डॉलर में लिए हैं, डॉलर में ही वापस करने हैं, ट्रेड आपने डॉलर में करनी है, जो भी है ये सारे कंट्रोल होते हैं कि टू मेक श्योर दैट यू यूज़ दैट। वरना कोई क्या मैं नहीं करनी, अगर सारे मार्केट क्या मैं नहीं करनी तो क्या होगा, लेकिन करनी पड़ती है क्योंकि ये टैक्स तो इसी में देना तो चाहिए तो ही, राइट। पर सो दैट कंट्रोल, even if there's a shift towards digital currency, I don't see that them giving away that control. Right. I think they will still find a way to control it. Bitcoin itself will play a role in it, but I don't think it will be your mainstream currencies that are being used. It might be, इसको हम settlement layer कहते हैं कि गोल्ड एक settlement layer है, कोई countries ने आपस में settle करना होता है चीज़ तो वो गोल्ड में settle कर देते हैं, Right. and the final settlement चीज़ गोल्ड, ठीक है। तो उसी तरह आई थिंक मे बी बिटकॉइन, जिसको डिजिटल गोल्ड भी इसलिए भी कह रहे हैं कि वो एंड में सेटलमेंट लेयर बन जाएगी, आम आदमी शायद इतना यूज़ ना करे, राइट। तो मेरे ख्याल में डिजिटल की तरफ जा रहे हैं, आई थिंक उधर ही जाएंगे। बट आई थिंक इट इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक टू थिंक कि इट विल बी समथिंग दैट विल बी नॉट कंट्रोल्ड बाय द पीपल हु आर कंट्रोलिंग द फियाट वन एज वेल। पर मैं
थोड़ा सा ग्रैंड थोड़े कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाह रहा था। और ये प्राइस लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं यार ये सारा ड्रामा है, ये क्या है करेंसी, ये वो कैश ही ठीक है, वो है क्या फ़र्क पड़ता है। पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ थोड़े डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इन कॉइन्स को देखने का। तो मुज़म्मिल आप मुझे बताएं, लेट्स सपोज इट इज़ 1990 और व्हाटएवर, और अमेज़ॉन बना, ठीक है, एंड हैविंग द इंफॉर्मेशन यू हैव नाउ इट्स फाइन, एंड लेट्स से इफ यू हैव द मनी, वुड यू इन्वेस्ट इन अमेज़ॉन? यस ऑफ कोर्स। ओके, कुछ साल बाद यूट्यूब आया, वुड यू इन्वेस्ट इन यूट्यूब? यस। वुड यू इन्वेस्ट इन स्काइप? यस Yeah, डेफिनेटली। right? So ये सारी चीज़ें which basically प्रोटोकॉल्स थी, रेवोल्यूशनरी चीज़ें थी, हाँ जिन्होंने चीज़ों को चेंज द वे ऑफ डूइंग थिंग्स। अगर कोई कहता है इंटरनेट में, अगर आपको तरीका मिलता है इंटरनेट में इन्वेस्ट करने का, आप करते हैं। मैं कर लेता डेफिनेटली। वो भी एक प्रोटोकॉल था कम्युनिकेशन का, TCP IP कहते हैं, TCP ओवर IP, राइट राइट। स्काइप को वॉइस ओवर IP, राइट। ठीक है, स्ट्रीमिंग जो भी वीडियो ओवर IP, सारी चीज़ें, राइट। दीज आर टेक्नोलॉजीज दैट नॉर्मल पीपल कैन नॉट इन्वेस्ट इन, राइट राइट, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनीज थी, बड़े बड़े राउंड्स रेज कर रहे होंगे, आपको वो ऑफर ही नहीं करेंगे, ऑफर भी कर दिया तो आपको 10, 20, 30 मिलियन डॉलर्स डालने पड़ेंगे, जो कि नहीं होता, राइट। ब्लॉकचेन इज अ टेक्नोलॉजी, you have to look at it as a technology first and foremost, which has मतलब बहुत सारे उसके यूज केसेस हैं, राइट। कोई लिमिट नहीं लग रही अभी, एनीथिंग कैन बी मूव्ड, एवरीथिंग वी डू राइट नाउ कैन बी मूव्ड ऑन टू द ब्लॉकचेन, क्रिएट मोर ट्रांसपेरेंसी, जो भी। एवरी कॉइन represents a different sort of sub technology or whatever use case of the blockchain. So Ripple can represent smart contracts, Ethereum can represent उसके ऊपर आप और blockchain के apps build करो, DApps वगैरह करो, right? You have to see these coins as your route to invest in the technology itself. अगर YouTube के shares थे तो Ripple का coin है। अगर आपके पास रिपल का कॉइन है तो ऐसे समझे कि आपने रिपल के शेयर्स खरीदे, यू आर इन्वेस्टिंग इन द टेक्नोलॉजी दैट रिपल, द यूज केस दैट रिपल इज ऑफरिंग। ओके, एंड देन देयर विल बी कंपनीज एंड प्रोडक्ट्स दैट विल बी ऑन, जिसके अंडरलाइंग के ऊपर रिपल की टेक्नोलॉजी यूज हो रही होगी। इट्स नॉट गोना बी यूज्ड एज अ करेंसी बट इट्स रादर द कॉइन। So right. So coin की वैल्यू आपने इस तरह देखनी है, राइट। लोग ये कह रहे हैं ऊपर चला जाता है, लोग खरीद लेते हैं एमी, और ठीक है, स्पेकुलेशन पे लोग आते हैं, व्हाटएवर, इट्स होता है जो शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी है, पर अपने लॉन्ग टर्म आपने इसको देखना है। यूट्यूब कंपनी है ना, यूट्यूब का एक शेयर आपके पास है, यूट्यूब अगर अच्छा करेगी, यूट्यूब अगर डिफरेंट लोग यूज़ करेंगे, उस पर यूज़र्स आएंगे, कंटेंट क्रिएट करेंगे, व्हाटएवर, व्यूज़ उनको मिलेंगी, तो उसका शेयर की प्राइस बढ़ेगी, राइट। रिपल एक यूज़ केस है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का। लेट्स से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मेन स्ट्रीम हो जाते हैं, सारी बड़ी कंपनीज यूज़ करना शुरू हो जाती हैं, सारे छोटे लोग भी यूज़, आपके डे टू डे में भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जिसकी टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन रिपल वो है, तो उसके कॉइन की वैल्यू क्या होगा? ऊपर जाएगी, राइट। तो आपने कॉइन्स को एज शेयर्स इन दीज कंपनीज देखना है। इसलिए जब नया आता भी है, इनकी IPO नहीं होती, इनकी ICO होती है, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, राइट। So they're offering you coins, they're offering you shares of their company to raise money for themselves. But are they also making money from that as well? So my question probably is, मैं Ripple को उठाता हूँ, मैं कहता हूँ कि Ripple as a foundation, are they just creating? So मैं अगर for example आप मुझसे पूछे ना, मैं Amazon में इन्वेस्ट करूँगा, मैं करूँगा, मैं Skype में इन्वेस्ट करूँगा, YouTube में करूँगा, आप मुझसे पूछेंगे कि यार इंटरनेट बनाने पे करोगे, मेरी उस इन्वेस्टमेंट में शायद ये फ़ायदा हो जाए कि मैं हिस्ट्री बुक्स में आ जाऊँ। मुझे रिटर्न तो नहीं मिला ना उस इंटरनेट, मतलब अगर ऑप्शन होती, मैं कहता, हाँ अगर ऑप्शन होती तो मैं प्रॉब्लम यही करता कि मैं कहता कि यार ठीक है मैं हिस्ट्री बुक्स में आ जाऊँगा, बट देयर इज नो रिटर्न अटैच टू इट। सो क्या क्रिप्टो करेंसी के अंदर इज देयर, और रादर मैं रिपल को उठाता हूँ, इज देयर कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या वो रिटर्न सिर्फ शेयर प्राइस पे ही है, दैट्स इट, लाइक देयर इज नथिंग, लाइक अगेन शेयर प्राइस से मुराद ये कि जो स्पेकुलेटिव प्राइसिंग है या डिमांड के ऊपर, अगर डिमांड है तो पीपल आर वो, या ऐसा भी है कि वो जो रिपल का कॉइन है वो उसकी कोई एक्चुअल यूटिलिटी है कि जिसमें वो कॉइन कोई अगर 10 कंपनियां आ गई तो 10 कंपनियों को इतने कॉइन्स लेने पड़ेंगे, तो इसकी वजह से डिमांड वैसे ही बढ़ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली, डू यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? या नहीं, आई डोंट थिंक उस तरह उसको आप, आई थिंक उसकी यूटिलिटी
उसकी जो वैल्यू है, उस मतलब मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि इन चीज़ों की रियल वैल्यू है। लोग कहते हैं ना ये एवं डिजिटल बना दिया तो क्या, बस कह दिया मैं भी उमर कॉइन निकाल लेता हूँ तो लोग अगर यूज़ करना शुरू हो गए तो ठीक है मेरी प्राइस बढ़ेगी, उस तरह तो बढ़ेगी, दैट्स फाइन, राइट। पर आई लाइक टू एक्सप्लेन दिस टू पीपल ताकि उसकी अंडरलाइंग वैल्यू उनको समझ आए। अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी इज ब्लॉकचेन। एनी कॉइन दैट यू बाय, यू आर इन्वेस्टिंग इन ब्लॉकचेन, यू आर इन्वेस्टिंग इन द फैक्ट दैट यू थिंक ब्लॉकचेन विल बी अ बिग थिंग इन द फ्यूचर। राइट। अब उस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लाइक इंटरनेट मैंने कहा, अब इंटरनेट पे स्काइप आता है, इंटरनेट पे यूट्यूब आता है, राइट? अब ब्लॉकचेन पे रिपल की टेक भी आती है, इथेरियम की टेक भी आती है, किसी भी टेक भी आती है, राइट। जिस टेक का यूज़ केस ज़्यादा अडॉप्ट हो गया दुनिया में, उसकी अंडरलाइंग वैल्यू बढ़ेगी। कॉइन्स आएंगे जो जस्ट एज अ करेंसी यूज़ होते हैं, लाइक बिटकॉइन की और कोई ऐसा यूटिलिटी नहीं है सिवाय इसके कि यू कैन यूज़ इट लाइक अ करेंसी। लाइट कॉइन सिमिलर, राइट। अब लाइट कॉइन पे वो डीफाई जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का कॉन्सेप्ट आ रहा है, उस पर शायद वो टेक्नोलॉजी अब इम्प्लीमेंट हो, पर ये अब रिपल का मैंने दिया। अगर आपको लगता है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी अ बिग थिंग इन द फ्यूचर एंड एवरीवन विल डू इट, एंड इफ रिपल यू थिंक राइट नाउ इज इन द लीड एंड इट विल विन दैट रेस, देन बाय डेफिनेशन रिपल का शेयर बढ़ना चाहिए, जिसका मतलब रिपल की कॉइन की वैल्यू बढ़ेगी, एंड दैट्स हाउ यू गेट इट। और अगर टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है तो देन इट्स इंटायरली डिपेंडेंट अपॉन द वर्ल्ड कि वो उसको मोनेटाइज किस तरह करते हैं। So then there might be a monetization in the future as well. I mean, if enough people are using it. There might be, right? Yeah. वही मैंने कहा कि I think the currencies जो digital currencies use होंगी, that will be some sort of government backed or central bank controlled currencies. So it might not be हम Bitcoin daily में ना exchange कर रहे हो, पर उसकी value as an investment is just like share की value बढ़ती है, so वो value बढ़ सकती है। चले, so that makes a lot of sense, Umar. Thank you so much for coming in and sharing all that insight. नहीं, जब मुझे टॉपिक पता चला मैंने यही कहा कि ये तो 8-10 घंटे की भी बात हो सकती है, डेफिनेटली, बट इट वाज रियली एंजॉयबल एंड दीज आर समथिंग दैट जो ट्रेंड्स है मैं फॉलो करता हूँ, एंड अगेन मैं एडवाइस करूँगा कि दुनिया के ट्रेंड्स देखें and most certainly and for all of you guys, thank you so much for watching. If you like this episode, share that with your friends as well. अगर आपके पास कोई सवालात हैं बिटकॉइन के रिलेटेड या स्टॉक्स के रिलेटेड या इस जो भी हमारी बात हुई है उसके बारे में किसी किस्म के कमेंट्स या फीडबैक है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इसी के साथ ऑडियो प्लेटफॉर्म में सुनने वाले लोग जो है वो सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले एपिसोड्स का आपको नोटिफिकेशन आएगा। यूट्यूब पे अगर आप लाइक का बटन दबाएंगे तो हमारी इंगेजमेंट बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों को हमारी कॉन्वर्सेशंस पहुंच सकेंगी, और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो अगेन आने वाले एपिसोड्स का आपको पता लगा रहेगा। इसके साथ ही दिस वाज Sayyid Muzammil Hasan Zaidi, you were watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching and I'll see you in the next one.